Hello guys, today's topic is solution of LPP by using the simplex method. And in this problem we have discussed the maximization of the maximization problem. यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x1 प्लस x2 लेस और इक्वल टू 450. देन सेकेंड कंस्टेंट है 2x1 प्लस x2 लेस और इक्वल टू 600 एंड x1 x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0. ये कंडीशन दी हुई है. चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम का. तो फर्स्ट स्टेप आएंगे. फर्स्ट स्टेप में अपने को ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है और मिनिमाइजेशन का है. ये देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे गिवन प्रॉब्लम इज द मैक्सिमाइजेशन. द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सेट इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 दी given problem 4x2 maximization of z equal to 3x1 plus 4x2. The given problem is already maximization. Okay, so then we move on to step 2. Step 2 here the all bi's all small bi's is already positive. Here this bi 450 and 600. So we here write down the all the bi's is already पॉजिटिव. उसके बाद स्टेप 3 आती है. स्टेप 3 में अपन लोग स्टेप 3 आती है. उसमें यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल ऐड करना पड़ता है. अपने को 2 वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दी आफ्टर addition of in the constraint of the LPP the reformulated LPP will be. तो यहाँ पे न्यू फॉर्मुलेटेड LPP अपन लिखेंगे. सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 प्लस यहाँ पे 2 कंस्टेंट ऐड करने हैं. सो 0x3 प्लस 0x4 ये 2 सरप्लस वेरिएबल है. So then next subjects to constraint. Here we write x1 plus x2 plus x3 equal to 450. Then 2x1 plus x2 plus x4 equal to 600. Then x1 x2 x3 and x4 greater or equal to 0. Here the reformulated LPP. Then we write down the step 4. In this step 4 we write the initial basic solution problem. So we obtain an initial basic feasible solution to the problem now we consider a x equal to b. So A matrix is the here 1 1 1 2 1 1. So here we write down the A matrix 1 1 1. Then 2 1 1 and 1 0 0 1. Okay, and the x is x1 x2 x3 x4 and here bi is 450 and 600. Then we write down b
dxb equal to b. Here we write down the 1 0 0 1, the b, and the x3 x4 and b with the 450 and 650 and 600. Then put x1 x2 equal to 0. Solve the system. So ax equal to b. Here we write down the same 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1. Then we here write down the x1 x2 is the 0 and x3 x4. Then here we equal to 450 and 600. Here we get x3 equal to 450 and x4 equal to 600. Then we moving on to simplex table, initial simplex table. Here we write down the initial simplex table. So here, okay, we move on to step 5, initial simplex table. Then we write down the initial simplex table from the reformulated LPP. So here Cj means 3400. Cj x1 corresponding value is the 3. Here we write down the 3 and x2 की वैल्यू है 4. तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, बाकी यहाँ पे 0 0 आएगा. ओके, देन xb. सो हियर द xb क्या है अपने. हियर वी राइट डाउन द xb x3. हियर वी राइट डाउन द xb x3 x4. सो हियर वी राइट डाउन x3 x4. देन cb. तो यहाँ पे cb क्या है. तो cb क्या आएंगे यहाँ पे. ये जो है cb अपने आएंगे 0 0. और b की वैल्यू, हियर वी राइट b की वैल्यूज है 450 एंड 600. हियर देन 450 and 600. So here we write down 450 and 600. Then here we write down the matrix. So here we write down 1 1. यहाँ पे एक जगह पे 1 1, यहाँ पे एक ज़्यादा लिखने में आया 1 2 1, यहाँ पे 1 0 0 1. सो हियर वी राइट, यहाँ पे अपन ने सिंप्लेक्स टेबल कंप्लीट कर लिया. आफ्टर दिस सिंप्लेक्स टेबल वी हैव टू कैलकुलेट Zj माइनस Cj. सो यहाँ पे Zj माइनस Cj कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो Zj यानी होता है 0 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 माइनस 3. सो हियर वी राइट डाउन माइनस 3. देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू Zj माइनस Cj की कैसे निकालेंगे. हियर वी दी Cb एंड x1. सो Zj माइनस Cj फॉर द फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2. ये हो गया पूरा Zj. ये है Zj और इसको माइनस करना है Cj. तो हियर Cj की वैल्यू है 3. सो हियर वी गेट ये पूरा, ये Cj की वैल्यू है, नॉट डिवाइड बाय. ये Zj की वैल्यू है, इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाय. ओके, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. 0 माइनस 3, इट विल बी गेट माइनस 3. सो हियर वी राइट डाउन माइनस 3. तो इसके बाद नेक्स्ट कॉलम के लिए निकालेंगे. नेक्स्ट कॉलम के लिए 0 इंटू 1 0 इंटू 1, देन 0 प्लस 0 इंटू 2 माइनस 4. सो हियर वी राइट डाउन माइनस 4. okay, it will be get minus 4. then after that here the 0 0, here we put the 0 0. ओके, यहाँ पे अपन ने Zj माइनस Cj निकाल लिया है. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है. तो Zj माइनस Cj, तो Zj माइनस Cj में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू पॉइंट आउट करनी है. यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखना है. तो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे -4. तो -4 ये हो गया अपना एंटरिंग वेक्टर. सो इसके बाद अपने को रेशो निकालना है. तो रेशो xi अपॉन yj. ओके, यहाँ पे रेशो निकालना है. रेशो, सो रेशो कैसे निकालेंगे. जो एंटरिंग वेक्टर है उस बाय जो एंटरिंग वेक्टर का जो
कॉलम है उसे डिवाइड करेंगे हियर 1 इक्वल टू 450. ओके, सेम एज इट इज 600. हियर वी गेट दी 600. यहाँ पे मिला अपने को 450. सो इसमें से जो 450 है, इसमें से जो छोटी वैल्यू है, यहाँ पे छोटी वैल्यू है 450. सो हियर वी गेट द आउटगोइंग वेक्टर. सो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेंगी वो अपना हो गया पिवोटल एलिमेंट. सो हियर 1 is a pivotal element. You can say that here we get the 1 is the pivotal element. Now we have to move on next step. सो ओके, वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. तो ये कैसे समझे कि अपने को नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करना है. तो यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, कोई माइनस सी जे ग्रेटर और इक्वल टू 0. जब तक जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं आ जाती, तब तक ये अपने को सिंपलेक्स टेबल करना है. तो सो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द स्टेप नंबर 6. यहाँ पे आएगा अपना सिंपलेक्स टेबल. So here we write down here we draw the simplex table. Okay, next move on to simplex table. Here we write down the same as it is CJ's values 3 4 0 0. Then we have to so देखो अब यहाँ पे पिवोटल एलिमेंट 1 है. सो 1 आया है, तो 1 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है यहाँ पे x2. सो हियर भी x2 है, तो हियर वी राइट डाउन दी x2 और यहाँ पे x4 एज इट इज़ आ जाएगा. x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 4. x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 4. देन x4 एज इट इज़ 0. अब देखो यहाँ पे 1 है, तो ये जो पिवोटल एलिमेंट है, पिवोटल एलिमेंट से ये सब रो को आपको डिवाइड करना है. Okay, so here the 450 divided by 1, we get the 450. Then 1 divided by 1, we get 1. Here we 1 divided by 1, here 1. Okay, और सब as it is आ जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने के बाद वैसे ही आ जाते हैं. So here the column of the pivotal element, we write down the here 0. जब भी पिवोटल एलिमेंट का जो कॉलम आएगा, उसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएंगे कॉलम में के, वो हमेशा 0 आएंगे. ओके, तो हियर वी राइट डाउन दी 0. देन नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट. अब देखो इस वैल्यू को निकालने के लिए कैसे निकालेंगे. तो इस वैल्यू को निकालने के लिए देखो यहाँ पे है 600, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 600. सो 600 इंटू पिवोटल एलिमेंट का जो ये है वो लिखेंगे. देखो जैसे 450 600 और यहाँ पे पिवोटल एलिमेंट 1 है और उसके साथ में के मैट्रिक्स 1. यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे ऐसे. देखो 600 इंटू 1 प्लस 450 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1. सॉरी, सो देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ गई. मैट्रिक्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस करके डिवाइड बाय पिवोटल एलिमेंट से डिवाइड करना है. तो 600 इंटू 1 माइनस 450 इंटू 1. तो हियर वी गेट दी 600 माइनस 450 डिवाइडेड बाय 1. सो हियर वी 600 में से 450 गए तो 0 5 1 150. हियर वी गेट दी 150. सो हियर वी राइट डाउन 150. देन नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है यहाँ की वैल्यू. सो यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 1 1 इंटू 1 minus 1 into 1 divided by 1. So here we write down 2 into 1 minus 1 into 1 divided by 1. So यहाँ पे 2 into 2 into 1 2 into 1 2 हो जाएगा, 1 into 1 हो जाएगा divided by, here we get the value 1. So here we write down 1. So यहाँ पे निकलने की वैल्यू यहाँ पे 0 into 1 0 1 into 1 मुझे यहाँ पे 1 आ जाएंगी. देखो 0 into 1 माइनस 1 into 1 डिवाइडेड बाय 1. तो ये 0 यहाँ पे माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू हियर वी गेट दी -1. सो हियर वी राइट डाउन -1. सो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, लास्ट वैल्यू की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1. सो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1. सो हियर वी गेट दी 1 अपॉन 1 वी गेट दी वैल्यू 1. सो देखो
ये पूरा हो गया अपना सिंप्लेक्स टेबल. सो नाउ we calculate the zj minus cj, zj minus cj. सो zj minus cj कैसे निकालना है तो बताया था. सो देखो zj minus cj निकालने के लिए क्या करते हैं, जो 4 है 4 से इंटू करेंगे 1 को, जो cb की वैल्यू लेंगे. तो हियर cb की वैल्यू क्या है, cb की वैल्यू है 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1. ये हो गया अपना zj. ये पूरा है zj. ठीक है, ये पूरा है zj और माइनस क्या करना है cj. तो cj की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3. सो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, देखो 4 इंटू 1 4 प्लस 0 इंटू 1 0 माइनस 3. सो यहाँ पे क्या मिलेगा इक्वल टू 1. तो हियर वी राइट डाउन 1. नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है नेक्स्ट कॉलम के लिए. तो नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे एज इट इज़ 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 4. सो देखो 4 माइनस 4 इक्वल टू वी गेट 0. हियर वी राइट डाउन 0. देन नेक्स्ट कॉलम के लिए लिखेंगे 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1 माइनस 0. तो यहाँ पे देखो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1 ये तो 0 आ जाएगा, फिर 0 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 आ जाएगा. तो यहाँ पे 4 आएगा. देन यहाँ पे लास्ट वैल्यू 4 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 0. Here we get the 4 into 0 0 minus 0 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. देखो यहाँ पे अपनी जो कंडीशन है जो है जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर और इक्वल टू 0. जेड जे और सी जे की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए. तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है. तो यहाँ पे अपन सिंप्लेक्स टेबल करना स्टॉप करते हैं. देखो जब ये कंडीशन इस टेबल में सेटिस्फाई नहीं होती थी तो अपने को इसमें से जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है वो पॉइंट आउट करके वहाँ से एंटरिंग वेक्टर निकालते थे. एंटरिंग वेक्टर देखो जैसे यहाँ पे इस टेबल में निकाला है, जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है उसे पॉइंट आउट करके एंटरिंग वेक्टर, यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू है छोटी वैल्यू को एंटरिंग वेक्टर बनाते थे. एंटरिंग वेक्टर जो छोटी वैल्यू एंटरिंग वेक्टर जहाँ से वो कॉलम पॉइंट आउट करते थे. कॉलम पॉइंट आउट करने के बाद अपने को रेशो निकालना पड़ता था. रेशो अपन निकलते थे ये जो बीजे का कॉलम है, बीजे के कॉलम के साथ रेशो निकालते थे जो एंटरिंग वेक्टर वाला कॉलम है उससे. तो तब जाके उनका रेशो निकालते थे. रेशो निकालने के बाद वहाँ उसमें से जो छोटी वैल्यू है तो छोटी वैल्यू को वैल्यू वाला रो वो हो जाता वो हो जाती है आउटगोइंग वेक्टर. तो आउटगोइंग वेक्टर मिलने के बाद जो आउटगोइंग वेक्टर और एंटरिंग वेक्टर के बीच में जो वैल्यू लाई करती है वो है 1, यानी कि जो भी आएंगी वो आएगा पिवोटल एलिमेंट. सो हियर वी कंप्लीट द टेबल. नेक्स्ट टेबल हियर वी कंप्लीट द टेबल. सो यहाँ पे अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. यहाँ पे 1 आया, 0 आया, 4 आया, 0 आया. सो हियर वी स्टॉप द सिंप्लेक्स टेबल. अगर यहाँ पे एक भी वैल्यू माइनस आती थी तो ये अपनी यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती थी तो अपन नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करते थे. ओके देन so here all zj minus cj greater or equal to 0 condition is satisfied. Thus here we write down the optimum solution. The optimum solution is, so here we get the value x1 इक्वल टू 0 आएगा और x2 की वैल्यू मिली यहाँ पे 4. x2 की वैल्यू मिली 4. सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ z. क्या दिया हुआ है अपना मैक्सिमाइजेशन ऑफ z 3x1 प्लस 4x2. तो यहाँ पर x2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 450. सो 450 हियर वी राइट डाउन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ z 3x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2. हियर वी पुट अप द x1 and x2 वैल्यू. सो वी गेट द 3 into 0 0 4 into 450 we get the 1 and 800. So here we maximization of z we get the value, maximization of z we get the value 800. Okay, thank you.